नमस्कार सबको, स्वागतम। और तेज जी, आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी। मैं तो आप सब लोगों से, सुशीला जी से, किरण जी से, आप सब लोगों से सीख रही हूँ। पर ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ इतने सारे लोग आज जुड़ पाए हैं। और जो इस कन्वेंशन का मेन थीम है उसके प्रति बढ़ते हुए मैं सब यही कहूंगी कि गैब्रिएला जी का की नोट स्पीच इतना निशब्द कर दिया है और मैं इतनी प्रेरणा मिली है उनके शब्दों से कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचिंग हेरिटेज लैंग्वेजेस टू द यंगर जनरेशंस इज अ चैलेंज। इस चीज को मन में रखते हुए और इसी भावना से ये प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप नहीं प्रेजेंटेशंस, हम उन लोगों के लिए तैयार करके लाए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमारी भाषा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और करती रहेंगी। तो ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति का ये दीप प्रज्वलित रखना हम सबका कर्तव्य है। शायद इसी चीज को मन में रखते हुए इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन डिसाइडेड टू मेक teaching and learning Hindi as a second language the theme of this convention. So we are now referring to all the formal and informal efforts that are being made in order to use and retain Hindi as a language of communication. We are referring to schools, colleges, the many universities, but more importantly, our homes. More importantly, communication in an informal way among those who belong to the Indian diaspora. तो किस तरह पढ़ाई जाए हिंदी? भारत से लाखों मील दूर अपनी भाषा अपनी आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह दे पाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के प्रति हम अपने ये छोटे छोटे कदम लेके आज की प्रेजेंटेशंस देख पाएंगे। टीचिंग इफेक्टिवली मतलब वो सफल हो हमारी शिक्षा, दिस इज अ साइंस एज एन आर्ट। ये विज्ञान भी है और एक बहुत ही सुंदर कला है। विद दिस वी ऑल एग्री that well thought and well researched techniques and strategies can make all the difference between successful teaching of heritage languages versus not so successful efforts. तो हमारी आज की इस श्रृंखला में आज 5 presentations होंगी और कल 4. We have the honor of presenting to you scholars, experts in the field, linguists, educationists, and the accomplishment of all our presenters are impressive and laudable. These people have devoted their lives, they have devoted hours, they have devoted so much effort that it only makes us proud. वास्तव में हम सब हिंदी प्रेमियों को इन प्रस्तुत करने वालों के प्रति आभार है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पर उससे भी ज्यादा हमारा सौभाग्य है कि आज इस कन्वेंशन के माध्यम से हम उनके ही मुख से, उनकी ही बातों से ज्ञान लेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सोचेंगे कि किस तरह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और सामान्य रूप में हम अपनी भाषा को आने वाली पीढ़ी को ना तो दे सकें बट और इसका बढ़ावा कर सकें। Gabriela ji, you were so right when you mentioned Hindi being the second most used language, and the fact that we can use digital technology in a more effective manner rather than considering it to be a deterrent. So it depends on us. We have to take the torch forward. So we have a total of 5 presentations, as I said. It's a little embarrassing to introduce Gabriela ji again, but what an honor. I've met you, but hearing your views today was literally mind-blowing. I cannot appreciate you enough. I'll give you a brief description of her biodata. It is long, it is lengthy, but it is so humbling to know that she has been able to join us today. So here is a dynamic personality.
whose enthusiasm to explore the ways language encodes socio-cultural meanings in unparalleled way. What she has done, perhaps no other expert has been able to do in the field of languages. In the area of foreign language pedagogy, her research interests are focused on differentiated pedagogical approaches to instruction, assessment of Hindi and Urdu heritage versus foreign languages. In addition, you must have unparalleled energy, Gabriela, to do this. In addition, she has examined medieval Hindi Indian poetics, namely the schools of Alankar, ornaments, and Dhwani, suggested meaning, in comparison with ancient Greek and Roman rhetoric and some contemporary European literary theories. Gabriela ji teaches advanced Hindi language course as well as ancient Indian literature in modern South Asian literature courses at NYU in New York. Above all, what really makes her so dear to us and so critical in this effort to advance Hindi language, she has been instrumental in teaching teachers, training them, educating them, and even more, enthusiastically empowering them and saying, you can do it. So let's all applaud, let's all welcome. स्वागत है और तहे हृदय से आपकी हम सराहना करते हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। गैब्रिएला जी। बहुत धन्यवाद। ये तो थोड़ी सी अजीब सी परिस्थिति है कि एक बार प्रस्तावना और अतिशयोक्ति हुई मेरे बारे में, अभी दूसरी बार हुई, लेकिन बहुत धन्यवाद। बहुत लोग काम करते हैं भाषा विज्ञान, भाषा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और इसीलिए ऐसा सम्मेलन हो सकता है। तो मैं तो किसी तरीके से अपवाद नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये बताना चाहिए कि शुरू से ही मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि हम हिंदी के बारे में अच्छी सी सामग्री बनाए, अच्छी सी प्रशिक्षण प्रणाली बनाए, आदि आदि। तो मैं शुरू करती हूँ एक छोटी सी कविता से, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी संस्कृति काफी कविता और संगीत और कला आधारित है। तो उसी तरह ये एक कविता है जिसको मैंने लिखा है कुछ साल पहले अध्यापकों के नाम से। आपके चेहरे हंसते हुए मैंने देखे, आपकी आंखें उल्लास से भरी मेरी आंखों से मिली, आपका प्रेम बढ़ता हुआ मैंने किया हमारी अनोखी भाषा के प्रति और इसकी वृद्धि एवं प्रगति। आपका जोश उमड़ता हुआ मेरे मन के भीतर समा गया, आपके परिश्रम और संकल्प ने फलतः आपकी उन्नति ने भी मेरे दिल तक पहुंचाई दृढ़ आशा और संतुष्टि की गहराई। ओके, सो जिस लाय से आप लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। आप बिना पढ़े बिना कहीं देखे वैसे ही आराम से बात करते हैं। ये मेरी मातृभाषा नहीं है इस जिंदगी की, लेकिन हो सकता है पहली जिंदगी की मातृभाषा हुई है, इसलिए ये लगाव हो रहा है। तो मैं आपको एक पावर पॉइंट दिखाऊंगी, अपना स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ कि कौन सा समय है, और हम बात करेंगे आपने जो शीर्षक लगाया है इस सम्मेलन के लिए, वो काफी चौड़ा है। उसमें अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग वैसे ही शोध आ सकते हैं।
जो मैंने सोचा कि महत्वपूर्ण है वो है कि हर एक भाषण के बाद, हर एक प्रस्तुति के बाद खास बिंदु होने चाहिए हर एक श्रोते के मन में। तो उसी तरह मैंने सोचा कि सब कुछ के बारे में बात नहीं हो सकती है जो क्लासरूम में, जो कक्षा में किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा फोकस करके मैंने कोशिश की है, देखते हैं कि क्या आपको क्या आएगा, आपको क्या पसंद आएगा, आप क्या उपयोगी समझेंगे, आदि आदि। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा, देख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। दोनों हिंदी अंग्रेजी में बात होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरी, अच्छा, ठीक है। जैसे हम काफी बात करते हैं क्लासरूम की पद्धतियों के बारे में, कि 21वीं सदी में अलग करना चाहिए, 21वीं सदी में जो विषय हम चुनते हैं वे भी अलग होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? आजकल सिर्फ हमारे समुदाय में नहीं, सिर्फ नहीं, लेकिन भारत में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में हिंदी पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो अमेरिका में खास तौर पे इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका वैश्वीकरण का नेता है। तो इस वैश्विक स्तर पे जो हम देख सकते हैं कि हो रहा है वो है कि आजकल अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी उपस्थित है, हिंदी का उपयोग होता है। नंबर एक है सामाजिक क्षेत्रों में, मतलब पुराने संदर्भ है जैसे राजनीति, कानून, शिक्षा, मनोरंजन, संचार माध्यम, ये पुराने संदर्भ में हिंदी का उपयोग होता है। लेकिन इसके साथ नए संदर्भ भी आते हैं, जैसे नए नए व्यवसाय, जो व्यापार है, विस्तृत साझेदारी, सहकारिता, सोशल मीडिया, गेम्स, एप्स, आदि आदि। इसी तरह जब हम वैश्विक स्तर पे हिंदी की उपस्थिति की बात करते हैं, जब देखते हैं कि नए संदर्भ है, पुराने संदर्भ है, लेकिन इसमें तो परिणाम है, जैसे जवान लोगों की नई पहचान मिलती है, उसी तरह राजनीति में हिस्सेदारी का नया दौरा होता है, सेवाओं और संसाधनों का बेहतर वितरण है, क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी, जैसे मान लीजिए कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं हिंदी सीखने के लिए, भारत से ही आते हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडवांस लेवल पे हिंदी पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी हिंदी, बोलचाल हिंदी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अगर अपने परिवार के व्यापार को चलाना चाहते हैं गांव में, तब तो उनकी हिंदी ठीक नहीं है, काफी नहीं है। और जैसे आजकल बॉलीवुड में भी हिंदी की आवश्यकता है, और डिजिटल दुनिया में हिंदी बोलना, हिंदी लिखना, ये भी एक बड़ी बड़ी आवश्यकता है। तो उसी तरह जवान लोगों की पहचान सिर्फ काम की वजह से नहीं, लेकिन अपनी पीढ़ी के बारे में जब सोचते हैं, अपनी पीढ़ी और माता पिता की पीढ़ी के बीच के फर्क जब समझते हैं, के अंतर जब समझते हैं, आजकल हिंदी इस फर्क में नहीं आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर भी हिंदी का उपयोग होता है, और ज्यादा संस्थानों में हिंदी के अनुवादकों की नई नई आवश्यकताएं पैदा होती जा रही हैं। अमेरिका में आजकल हिंदी का जैसे वैसे हिंदी का झंडा फहराया जा रहा है, और उसके लिए भी काफी कारण है। जैसे भारतीय समुदाय की आबादी बाकी आबादी की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पे रखी जाती है, उच्च शिक्षा की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से, नौकरियों की के आधार पर भी। तो हिंदी सीखने सिखाने की नई इच्छा और योजनाएं बनती जा रही हैं। अमेरिका में देशी आबादी आप देख सकते हैं कि नंबर कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, ये दिस इज फ्रॉम 2013 और 2015। सो आजकल एक्चुअली 2013, ये यहाँ आप 213। हिंदी बोलने वाले की मांग अलग अलग क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में, टेलीफोन कंपनीज में, दुकानों में, अस्पतालों में, आदि आदि, डॉक्टर, नर्स। और तो ये हमारा इस सम्मेलन का जैसे कि पृष्ठभूमि है कि हमने क्यों सोचा है कि हिंदी के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, कि हिंदी पढ़ाने के तरीकों के बारे में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी की जरूरत है। भारत में एक नया दौरा है, अमेरिका में, पूरी दुनिया में। तो मेरे जो उद्देश्य है वो है कि हम 21वीं शताब्दी की काबिलियत के बारे में बात करेंगे। हम कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जो फलदायक है, जो कामयाब है, जो उपयोगी है दोनों अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ मेरा ये एक खास सुझाव है कि हम माइंड मैपिंग को समझें और ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं दिखाती हूँ कि कैसे। हम थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ये पुरानी बात है, लेकिन फिर भी उसके बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन 21वीं शताब्दी की काबिलियतों की दृष्टि से। और हम कैसे जब पढ़ाते हैं हिंदी, हम कैसे अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में तैयारी करेंगे। संस्कृति के बारे में क्या पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा के बारे में क्या पढ़ाएंगे। इसके साथ जब संस्कृति की बात करते हैं, क्या उसमें भूगोल आएगा, उसमें इतिहास आएगा, उसमें साहित्य आएगा, और क्या आएगा, ये तैयारी किस स्तर पे है। और इसके बाद ये तीनों भागों को हम कैसे एकत्रित करेंगे एक लेसन प्लान में। शुरू करते हैं। आमतौर पर हिंदी पढ़ाई जाती है अमेरिका में और दुनिया में काफी जगहों में हेरिटेज लैंग्वेज के रूप में। हेरिटेज लैंग्वेज का मतलब यह है कि विद्यार्थियों के लिए एक वास्ता है, हो सकता है भावना के आधार पर वास्ता है, हो सकता है वैसे ही पारिवारिक सिर्फ वास्ता है, उसमें कोई सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है, या सांस्कृतिक भी है। आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के हेरिटेज लैंग्वेज लर्नर्स हमारे पास मिलते हैं। लैंग्वेज एसोसिएट मतलब कि जो हिंदी जिनके परिवार में हिंदी बोली नहीं जाती है,
हो सकता है बॉलीवुड फिल्में देखी जाती है, लेकिन हिंदी में बातचीत नहीं होती है, लेकिन कॉग्निट भाषाओं में होती है। गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, हो सकता है उर्दू के लिए भी सिंधी, पश्तो, बलोची, उर्दू वाले भी हिंदी सीखने आते हैं हमारी क्लासों में। ये कॉग्निट लैंग्वेजेस हैं, ये इंडो एरियन लैंग्वेजेस है जो संस्कृत से आए हुए हैं, जो जैसे जो शाखा है इंडो एरियन लैंग्वेजेस, ये एक उपशाखा है इंडो एरियन लैंग्वेजेस। लेकिन वैसे भी हैं जिनके परिवार में नॉन कॉग्निट भाषा जो द्राविड़ है बोली जाती है। तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बुरुशस्की भी द्राविड़ भाषा है। तो लेकिन उन परिवारों में भी या तो मंदिरों में या तो टीवी पे काफी हिंदी, काफी संस्कृत भी सुनाई देती है। इसके साथ कल्चर एसोसिएट है जो हिंदी सीखते हैं, हो सकता है, लेकिन परिवार में कम बोलते हैं। सो मॉरिशस और फिजी, सिंगापुर एज वेल, वहाँ ऐसा समुदाय है जहाँ स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो वे लोग सिर्फ कल्चर एसोसिएट नहीं है, उनको लैंग्वेज एसोसिएट भी समझना चाहिए। लेकिन उसी तरह हम डायस्पोरा के रूप में उनको रखा है। सो उनको जो हमारे त्योहार है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, समझते हैं, जानते हैं, कुछ शब्द आते हैं और काफी देखने से भी समझ सकते हैं संस्कृति से संबंधित। लेकिन काफी वैसे लोग नहीं हैं जो परिवार में ही हिंदी में बात करें या किसी दूसरी भारतीय भाषा में बात करें। तो उसी तरह और एंसेस्ट्रल ग्रुप जो है वो सीधे उनके परिवार में हिंदी या उर्दू बोलते हैं। क्यों इन विद्यार्थियों को समझना जरूरी है? क्योंकि वे लोग अलग हैं फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स की तुलना में, जो गोरे बच्चे हैं या जिनकी कोई भूमिका नहीं है हिंदी से संबंधित। वैसे बच्चे जो हेरिटेज हैं वे समझने में अच्छे हैं, काफी देखे हैं, काफी सुने हैं, लेकिन बोलने में या लिखने में कमजोर हैं। तो मतलब कि जो रिसेप्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, ये हमारा उद्देश्य बन जाता है कि एक को दूसरे के स्तर पे लाना और आगे बढ़ाना। इसके बाद जैसे जो सुनना है, जो स्वर से संबंधित है, वो ज्यादा विकसित है उन बच्चों में, लेकिन लिपि से संबंधित कोई भी योग्यता नहीं या प्रवीणता नहीं है, या थोड़ी सी है संस्कृत मंत्रों को पढ़ने से। इसके साथ काफी हम देख सकते हैं कि बच्चे फॉसिलाइज्ड, जैसे जो वैसे ही पता नहीं कि हिंदी में कैसे बोलेंगे, लेकिन मतलब कि ये काफी दोहराते हैं एक ही प्रकार की गलतियां। जैसे पार्टी पे बहुत लोगों आए, मतलब कि ये जो ऑब्लिक प्लूरल फॉर्म है वे समझते हैं कि डिफॉल्ट है प्लूरल के लिए। या मेरा भाई के कमरे में, मेरा भाई इज टू फार फ्रॉम द पोस्ट पोजिशन, उसी तरह ये थोड़ा सा फॉसिलाइज बन जाता है ऑब्लिक फॉर्म। फ्लुएंसी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि ये समस्या है क्योंकि बच्चे जब क्लास में आते हैं, अध्यापक को अक्सर लगता है कि हाँ थोड़ा सा बोलता है, काफी बोलता है, तो ये अच्छी बात है, मतलब सवाल भी पूछ सकता है बच्चा,
लेकिन छोटे छोटे वाक्यों में ये होता है और उसको ज्यादा संयुक्त वाक्यों में या ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में हमारा उद्देश्य रखा जाता है। और उसी तरह हम बोलते हैं कि vocabulary register appropriateness, जैसे बच्चे आते हैं क्लास में आंटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में ये तो रजिस्टर की बात है, या आप जैसे आप कैसे हो, ये भी बोलचाल हिंदी में काफी होता है। तो उसी तरह वोकैबुलरी अंग्रेजी की वजह से वोकैबुलरी का विकास भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी शब्द ना आए अंग्रेजी का शब्द लगा दें, कोई समस्या नहीं, सब लोग समझेंगे। ठीक है। सो आमतौर पे हम जानते हैं कि क्योंकि हमने जैसे कहा कि स्वर से संबंधित उनकी काबिलियत है, दे कैन यूज गेसिंग स्ट्रेटजीज, उन्होंने काफी सुना है जिसको पूरी तरह नहीं समझा है, लेकिन कोई ना कोई उपाय उन्होंने सोचा है कि आम की बात समझ ले। बच्चे जब घर में या समुदाय में हिंदी सीखते हैं, ज्यादातर दूसरे लोगों से बात करने में सीखते हैं। बहुत लंबे समय में इंटरप्रेटिव मोड में नहीं बैठते सुनते या बैठ के पढ़ते हैं, और प्रस्तुति उनके लिए प्रस्तुति करना मुश्किल है। तो उसी तरह वे पकड़ते हैं इंटरपर्सनल मोड को और ज्यादा उसमें काम करना चाहते हैं। तो ये अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समझे। बच्चे अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपनी अनुभूति के बारे में बोलना चाहते हैं और बोलना अच्छा लगता है उनको, क्योंकि ये है सीधा वास्ता हिंदी से। लेकिन अगर उनका रजिस्टर, अगर जो शब्दावली है उनकी ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि कैसे करना है, पर्सनलाइज्ड स्फीयर के बाहर उनको निकालना है। इसलिए हम बोलते हैं कि खास रोल्स देने चाहिए बच्चों को, ताकि वे अपने बारे में बात न करें। जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि अगर आप एक पत्रकार हैं और एक परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं, जो आपने देखा है कि वहाँ औरत के काम के आधार पर बच्चों का विकास हुआ है, और बच्चों को औरत के काम की वजह से बच्चों को पैसा मिला है ताकि वे अच्छे स्कूल में जाए, आदि आदि। तो तब परिवार की बात जब शुरू करेंगे, वे पर्सनलाइज करेंगे, जैसे मेरे गांव में, जैसे मेरे परिवार में, तो उसी तरह रजिस्टर नीचे आएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आप पत्रकार हैं लेकिन आप एक मंत्री से बात कर रहे हैं, तब तो खास क्लीशेज, खास फॉर्मूले उनको सीखना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हेरिटेज लर्नर्स वे समझते हैं कि पॉपुलर कल्चर क्या है, मतलब बॉलीवुड जानते हैं, काफी गाने गाते हैं, एकेडमिक कल्चर कम जानते हैं। उनको उनके जो उच्चारण के तरीके हैं बहुत अच्छे हैं, इंटोनेशन भी अच्छे हैं, फीलर्स भी उनके पास है। जैसे बोलते हैं मेरा मतलब है कि या क्या क्या और बताऊं, क्या और बोलूं, तो ये सारे फीलर्स हैं जिनको आते हैं, फिर भी उनका स्तर एडवांस पे नहीं है। और ये भी एक सिंप्लीफिकेशन, सर्कमवेंशन, ये भी एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसके लिए बच्चों को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन फिर भी जब खास शब्द इस्तेमाल करना है तो उस पे हमें ध्यान देना है और बल देना है। और नेगोशिएट एम्बिग्विटी सबसे महत्वपूर्ण काबिलियत है उनकी, जो फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स के पास बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने कहा रजिस्टर
context inappropriate use of language, personalization issues, honorifics inconsistent use, क्योंकि आंटी से, माता पिता से, नाना नानी, दादा दादी से ज्यादा बात हुई है, लेकिन किसी औपचारिक वातावरण में, किसी औपचारिक अवसर पर उन्होंने हिंदी में बात नहीं की है, तो उसी तरह इसीलिए honorifics का इस्तेमाल कम कंसिस्टेंट है. Inaccurate use of oblique forms, जैसे लोगों आए हैं, weak control of gender, कभी कभी मालूम नहीं है कि शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. Frequent inaccuracies in plural, inconsistent use of reflexive possessive, जैसे अपना का इस्तेमाल हमेशा ठीक से नहीं करते हैं. Passive voice अवॉइड करते हैं, जैसे फिल्में बनती हैं, बोलते हैं फिल्में बनाई जाती हैं, ये ऊंचे रजिस्टर का बन जाता है. और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सकना, जैसे मैं वहां जा सकती हूँ वर्सेस मैं वहां जाऊं, सबजंक्टिव. ठीक है. सो ये हमारी बात हुई बच्चों के बारे में कि कैसे हैं कि क्लास में जब आते हैं, अगर हेरिटेज है, उनकी क्या कमजोरियां और उनकी क्या विशेषताएं हैं. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 21वीं शताब्दी, although this is 2020, हम बात करते हैं 21st century की. ये हैं बहुत खास वर्क स्किल्स, और ये हैं सबसे महत्वपूर्ण एरियाज, जैसे जो बड़े बड़े हैं, extreme longevity, computational world, superstructured organizations, globally connected world, new media ecology, rise of smart machine and systems. ये सारे फैक्टर्स हैं, और उनके आधार पर जो काबिलियतें होनी चाहिए, हमें सोचना पड़ता है कि ट्रांसडिसिप्लिनरिटी आजकल, भविष्य में नहीं, आजकल की नौकरी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है. तो हम क्लास में कैसे ट्रांसडिसिप्लिनरिटी सिखाएं, कैसे बच्चों का डिजाइन माइंडसेट सिखाएं, वर्चुअल कोलैबोरेशन कैसे सिखाएं, क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी आदि आदि. So these are, so again, we have the surrounding factors, but the skills are the ones that we need to make sure कि हम कक्षा में उनको पढ़ाएं. So this is one set जो नौकरी पर आधारित है of skills. ये वाला जो है वो ज्यादातर शिक्षा प्रणाली में इस्तेमाल करते हैं. उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है critical thinking, communication, collaboration, creativity है. इसके साथ information, media and technology skills, life and career skills. ठीक है. So आप ने देखा है दो maps 21st century के skills के. मतलब कि भाषा प्रशिक्षण में हम आम तौर पर जब बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, बच्चों के एविडेंस के बारे में सोचते हैं कि क्या उन्होंने सीखा है जो हमने पढ़ाया है, तो हम ऐसी क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं. क्या बच्चा कैटेगराइज कर सकता है, क्या बच्चा कंस्ट्रक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, या डायग्राम बना सकता है और इसके साथ एक्सप्लेन कर सकता है, आदि आदि. So this is the set of verbs that we use when we make our plans to teach our students. These are the verbs that the students perform based on the tasks that we design. वे एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई, एनालिसिस में. कॉम्प्रिहेंशन वो तो ज्यादा मतलब कम काम है बच्चों के लिए. अरेंज, कैटेगराइज, चेंज, कोई प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं कि समझते हैं, आदि आदि. तो इसीलिए मैंने ये सारी क्रियाओं को यहाँ रखा है.
ये जैसे मैंने जिक्र किया, कल्चर, संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा को बिना सांस्कृतिक संदर्भ के हम नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कल्चर? कल्चर एक ऐसी बात है जो आप देख सकते हैं कि language to identify, discuss, explain, compare, investigate, and reflect on the relationship among the products, practices, and perspectives of the culture studied. So, products, practices, and perspectives. मतलब एक है वास्तु या चीज पता नहीं, एक है व्यवहार, क्या करते हैं इन चीजों के साथ और इसके साथ क्यों, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या मान्यता है इसके पीछे, क्यों लोग ये करते हैं। सो कल्चर को समझना चाहिए ये तीनों टुकड़ों में, ये तीनों भागों में, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता है एक्सप्लिसिट रूप से सिर्फ और बस हो गया, हमारा लेक्चर हो गया। नहीं, बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में बात करना है, मतलब कि एक्सप्लेन करना है, आदि आदि। तो ये कल्चर एक कंपोनेंट हो गया। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या है? भाषा विज्ञान नहीं है, मैं भाषा वैज्ञानिक हूं। बच्चों को समझाना कि the ergative construction is related to a particular accusative, nominative, absolutive, I don't even remember anymore, case that is Proto-Indo-European, and like in English we say, let's say employer, employee, transitive verbs, इसीलिए ये हो सकता है। उसी तरह ने का इस्तेमाल होता है सिर्फ transitive verbs। It's absolutely unnecessary कि हम उसी तरह ब्यौरे में भाषा वैज्ञानिक जानकारी दे बच्चों को। लेकिन क्या है वो तो इस्तेमाल कैसे करते हैं भाषा? 3 मोड्स में, मतलब कि comprehension जो इंटरप्रेटिव है, इंटरपर्सनल जब बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, असली जानकारी एक्सचेंज करते हैं, और प्रस्तुति जो मैं कर रही हूं ये प्रस्तुति है, ये सबसे बोरिंग है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या है कि कौन से विषय, कौन सी आम जिंदगी, कौन सी बाहरी जिंदगी के विषय हम चुनते हैं ताकि क्लास में वे आए और हम बात उनके बारे में भी करें। ठीक है, सो कंपोनेंट्स हैं, हमेशा मानना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए और उनकी तैयारी करनी चाहिए। लैंग्वेज, कंटेंट, कल्चर, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करेंगे हमें मालूम नहीं है। मतलब क्या कक्षा की शुरुआत में हम विषय पढ़ाएं, भूगोल, ये भारतीय भूगोल है, देखिए ये वो है। इसके बाद लैंग्वेज हम पोस्टपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे भारत में, भारत से, और हम कल्चर की बात करेंगे। थोड़ा सा पता नहीं कि भूगोल में मुश्किल होगा, लेकिन हम बता सकते हैं कि जैसे दिवाली भारत में अलग अलग जगहों पे कैसे मनाई जाती है। लेकिन ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे बात ही, जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण दिया, लीनियर रूप में हम सिखा सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। आजकल 21वीं शताब्दी में कुछ जानकारी लीनियर रूप में नहीं आती है। सब कुछ होलिस्टिक है, सब कुछ ग्लोबल है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। हम कम कागजी बात करते हैं, कागजी काम करते हैं जहां 1 है, 2 है, 3 है। हम कंप्यूटर पे काम करते हैं जहां तीसरा भाग नंबर 1 बन जाता है, आदि आदि। तो उसी तरह लीनियर रूप से हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेटेड रूप से कैसे मतलब जब बच्चों को कुछ समझाना है, जरूर 1 समझाएंगे, 2 समझाएंगे, 3 समझाएंगे, लेकिन अंत में एकत्रित कैसे करेंगे वो है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, असली संप्रेषण, असली जिंदगी जो मिरर करता है संप्रेषण।
This is just a map just to show you how the UN is organizing ये सारा content area जिसके बारे में हमने बात की. Global challenges, science and technology, contemporary life, personal and public identities, families and communities, beauty and aesthetics. So these are, मतलब कि ये बहुत बड़े से बड़े क्षेत्र हैं जिनके बारे में content विषय आ सकता है. This is another map that I'm showing you. जो focus on content versus focus on language. उसमें ये reverse pyramid and pyramid बनाया जाता है. इसीलिए दिखाना है क्योंकि बहुत information बच्चों को दिखाना है. काफी सामग्री जो हम उसी तरह मतलब भाषा को कैसे इस्तेमाल करते हैं दिखाना चाहते हैं बच्चों को शुरुआत से, ताकि वे कुछ नोटिस करें, ताकि इसके बाद वे नोटिस करें कि कुछ पैटर्न्स हैं, कि कुछ फॉर्म्स हैं. आप भी अध्यापक के रूप में उनको दिखाते हैं कि और क्या क्या फॉर्म्स हैं जिनको उन्होंने नहीं नोटिस किया है, लेकिन आगे हम उनको प्रैक्टिस के मौके देते हैं और असली संप्रेषण के टास्क्स भी डिजाइन करते हैं उनके लिए. तो उसी तरह रिटेंशन के रूप में हम बोलते हैं कि ये रिवर्स एंड स्ट्रेट पिरामिड को अगर फॉलो करते हैं तो बच्चे ज्यादा याद रखेंगे जो हमने उनको पढ़ाया है. ये एक पिरामिड है जो दिखाता है कि ये कोन ऑफ लर्निंग बोलते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे है वो है 90%. Say and do. This is the performance part. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सिर्फ न बोले, न पढ़े, न देखें, लेकिन कुछ न कुछ करें भाषा के साथ. जैसे हमने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को नमूने देने हैं कि असली जिंदगी में मातृभाषा बोलने वाले कैसे बात करते हैं, कैसे हिंदी में बात करते हैं, या कैसे हिंदी में काम करते हैं, या कैसे हिंदी का इस्तेमाल करते हैं. हम ऑथेंटिक मटेरियल्स की बात करते हैं इन ऑथेंटिक वेज, क्योंकि जो कक्षा में काम किया जाता है, मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा सा साइन खींचा है, फोटो खींचा है उसका, और उसमें काफी इंटरेस्टिंग भाषा की फॉर्म्स हैं, तो आपने सोचा कि बच्चों को सिखाएंगे. अगर सिर्फ समझाएंगे कि ये क्या फॉर्म्स हैं, न तो संस्कृति उसमें आएगा, मतलब बात के रूप में न तो संस्कृति आएगी उसमें, न तो कंटेंट, सिर्फ भाषा की बात करेंगे. तो उसी तरह ऑथेंटिक रूप से ही सब कुछ इस्तेमाल करना है जब असली जिंदगी से हम सामग्री जमा करते हैं. हम नंबर 1 हम ये करते हैं कि चुनते हैं. नंबर 2 हम टास्क कैसे डिजाइन करते हैं ताकि उस ऑथेंटिक मटेरियल पे तीनों मोड्स में, इंटरप्रेटिव, इंटरपर्सनल और प्रेजेंटेशनल में टास्क बनाए, और डिजाइन टास्क with the authenticity in mind. Develop can-do statements for the lesson in which the verbs जो टेबल है जैसे मैंने दिखाया शुरुआत में, उन verbs के जरिए आप असेस कर सकते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है. ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने लिखा है कई classroom lessons. Emphasis is not on authentic materials but on authentic interaction. Keeping authenticity increases effectiveness.
Selection of authentic material should provide a comprehensive representation of various cultural aspects to avoid generalization, and using raft engages and motivates. Raft का मतलब है बच्चों को, आप देख लीजिए letters. R is role, A audience, F is format, T is topic. ये तीनों हमेशा, ये चारों माफ कीजिएगा, ये चारों हमेशा बच्चों को देना है. Role, audience, format and topic. Role का मतलब पर्सनलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए. ऑडियंस का मतलब बच्चों से अगर बात करनी है एक बात है, मंत्री से अगर बात करनी है दूसरी बात है. फॉर्मेट का मतलब क्या ये प्रस्तुति है, क्या ये एक पोस्ट है, क्या ये एक वीडियो रिपोर्ट है, क्या ये एक टॉक शो है, जो भी असली जिंदगी में होता है, ये फॉर्मेट. और टॉपिक मतलब कि आयु के बारे में बात करें, उदाहरण. अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि माइंड मैपिंग के बारे में थोड़ा सा हमारा ध्यान होना चाहिए. क्यों? मैंने जो आपको दिखाया वो माइंड मैपिंग के आधार पर था ना. मैंने किसी न किसी तरीके से, ताकि आपका ध्यान आकर्षित करूं, ताकि आप मेरी बात ठीक से समझें. उदाहरण देने के लिए मैंने मैप्स का इस्तेमाल किया. और आजकल नौकरी में पाठ्य पुस्तकों में भी और हमारे प्रेजेंटेशंस में, अध्यापक की बात कर रही हूँ, हमारे प्रेजेंटेशंस में काफी माइंड मैपिंग चल रही है. लेकिन क्या हम बच्चों को टास्क के रूप में देते हैं माइंड बनाने के लिए? पता नहीं. मैंने वैसे ही जब माइंड मैपिंग के बारे में शोध पढ़ा, मैंने सोचा अरे हम टेबल्स फिल आउट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक, लेकिन माइंड मैपिंग क्यों समझना चाहिए कि उपयोगी है. आमतौर पे हेरिटेज लर्नर्स, जैसे हमने कहा कि वे कम बोल सकते हैं, नहीं, कि वे कम लिख सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोल सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं सुनने से. तो माइंड मैपिंग, आप मान लीजिए कि मैप्स, उसी तरह कॉन्सेप्ट मैप्स अगर बच्चे बनाते हैं, उनका मतलब है कि वे कम लिखेंगे, लेकिन जो उन्होंने लिखा है उसके आधार पर ज्यादा बात करेंगे. तो जो समझते हैं कि महत्वपूर्ण है बताना, उसको लिखेंगे, सिर्फ पूरे वाक्य नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ उसको लिखेंगे. उसको देखकर इसके बाद जो शब्दावली होनी चाहिए इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्म्स आपने उनको दिया है उनको इस्तेमाल करेंगे. तो उसी तरह हम सोचते हैं कि हेरिटेज लर्नर्स के लिए ही माइंड मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है. It is a visual aid and a process structure, organizes content for development, is a mirror of constructivist theory we learn by organizing new concepts, enhances thinking and learning skills, supports students' creativity and achievement. जैसे creativity मतलब कि कैसा माप होगा, क्या मतलब डिजाइन होगा, कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे. बच्चों का ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बच्चों को उसी तरह स्टिमुलेट कर रहे हैं. तो so these are the three communicative modes. We are very familiar with the interpretive mode, with the interpersonal mode, the presentational mode. I'm going to skip through this. This is what it means to have authentic materials, and these are the kinds of things we should be looking for, या तो on the internet, या तो जब हम असल में भारत में यात्रा करते हैं, या वैसे ही परिवार से मिलने गए हैं. ये दूसरे उदाहरण है. ये एक उदाहरण है जहां सिर्फ विजुअल है, यहाँ कुछ लिखा है. This is
बर्फ सा सफेद, सबसे सफेद, पता नहीं आपको मालूम है कि ये क्या है? सो बच्चे काफी मतलब एलिमेंट्री लेवल पे अनुमान लगाना चाहते हैं और अनुमान लगाते हैं, फिर भी कभी ठीक सा वो जवाब नहीं देते हैं। आप सोच लीजिए, अंत में चैट में लिख सकते हैं कि आपके अनुसार बर्फ सा सफेद, सबसे सफेद कौन सी चीज है जो यहाँ बिकती है। ठीक है, सो अनाउंसमेंट, म्यूजिक इवेंट्स आदि आदि। ये एक उदाहरण है, उसमें गलतियां हैं। मेरे एक बच्चे का उदाहरण है। हमने काफी काम किया है उस विषय पे। तो अंत में प्रस्तुति करने से पहले मित्तल ने अपनी सारी बात ऑर्गेनाइज किया है उसी तरह। It can be used for interpretive mode tasks. You can listen and read with visuals, listen, read, and select, organize, and categorize in graphs. There are forms, forming questions. You can say, you can have them, जैसे हम लकी हैं कि हिंदी में हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड है हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आती है, तो उसी तरह काफी अभ्यास हो सकता है सिर्फ फॉर्मिंग क्वेश्चंस के साथ आदि आदि। ये सारे टास्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो ये एक प्लॉट डायग्राम है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 चीजें, 1 2 3 पॉइंट्स आप विद्यार्थी के रूप में लिख सकते हैं, ताकि इसके बाद जब बातचीत होती है कहानी पे, तो आपका सारा जो प्लान है मन में, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ये एक दूसरा उदाहरण है बच्चों के। हमने एनजीओ के रूप में काफी बात करते हैं कि क्या करना है। बैंक में खाता खोलना आदि, उसी के बारे में काफी इंफॉर्मेशंस हैं, तो उसके आधार पर ये काम करते हैं। तो ये एक दूसरा मैप है जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरपर्सनल मोड में अभ्यास करने के लिए। And these are other ideas for now. I want to give you, I know I'm running out of time. I'm going to give you a particular idea for how specific we need to be in the interpersonal mode, ताकि हमारे बच्चों की हिंदी मतलब उसमें थोड़ा सा कंपल्शन हो कि कुछ और का इस्तेमाल करें। So you're a young adult and you are talking to an older person about the new car factory that was built in the neighborhood. You're collecting signatures for a petition to improve the air quality. Mention your thoughts about, so you can see how detailed you are. This is a car that is used for middle school. Student B, you're an older person, you're the one. So this is the audience and the reverse audience. Mention your worries about the impact on the environment, adi adi. So this is how specific we need to be in our tasks for the students. Presentational mode, we already are familiar. It doesn't have to be सिर्फ बात से नहीं होती है प्रस्तुति, लेकिन आप email लिख सकते हैं, post लिख सकते हैं, captions जो beginning हिंदी के लिए captions कई शब्द लिख सकते हैं किसी तस्वीर के नीचे आदि आदि। तो ये अलग अलग उदाहरण है। Another specifics, you are expecting relatives, cousins to come to your house for the first time. Prepare a video message you will send to them describing your home's most important features. मतलब कि you see कि सिर्फ ये कमरा है, उसमें 2 सोफे है, काफी नहीं होगा ऐसे टास्क को करने के लिए। You are an Airbnb host, another type of a real life task. So उसी तरह हमने सोचा कि हम उदाहरण दे सकते हैं, फैमिली को हमेशा सिखाते हैं, लेकिन having in mind the 21st century, having in mind the multidisciplinarity, having in mind the integration of these 3 components, culture, language, and content.
here is one way to map out a particular content area. Another one that we always teach, food. You can see कि the integration कैसे किया जा सकता है तीनों components के बीच. ठीक है. So मैं यहाँ अपनी प्रस्तुति खत्म करती हूँ. अगर आपके कोई सवाल हैं तो जरूर पूछिए. आशा है कि माइंड मैपिंग में मैंने आपको थोड़ा सा कन्विंस किया कि ज्यादा इस्तेमाल करना है. नंबर 1 और नंबर 2 कि कैसे असली जिंदगी से संबंधित 21वीं शताब्दी में बच्चों को तैयार करने के लिए नए क्षेत्रों के लिए जो डिजिटल वर्ल्ड से संबंधित है, जो वर्चुअलिटी से संबंधित है, जो मल्टीलिंगुअलिटी से संबंधित है. हम आजकल ज्यादा काम करने वाले हैं ताकि हम 21वीं शताब्दी के शिक्षक बन जाएं. धन्यवाद. धन्यवाद गैब्रिएला, आपने बहुत बहुत बढ़िया काम किया और हम लोग को सबकी तरफ से जो भी आ रहा है तो उसमें भी लोग काफी खुश हैं. एंड आई थिंक रिचा एंड रेनू, तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा है? इफ यू कैन आस्क गैब्रिएला. I think Rajiv Ranjan was asking something. Rajiv ji is here. I don't know. ऊपर में I think the people who were going to do. रश्मि जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? Okay, I see Rajiv ji's question. In modern time, when we focus more on communication, that said, many times it has been experienced that HLLs do not pay attention to grammar as good as FLLs. This seems to be a problem for higher register situations. Please share your thoughts and path forward. Very good question. HLLs, actually HLLs meaning heritage learners. Heritage learners, there is research done, a lot of it in UCLA, Olga Kagan and Maria Pulinsky. They say that target interventions with heritage language learners work best. मतलब कि क्योंकि heritage language learners उसी तरह समझना है उनकी काबिलियत की एक दीवार है. आपको मालूम नहीं है कि कौन सी इंट नहीं है, तो इस दीवार को मजबूत करना चाहिए, लेकिन दीवार तो है. सो उसी तरह जब कोई कमजोरी उमड़ती है, जो इंट आपने देखा कि वहां नहीं है, आपको लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? इंटरवेंशन के रूप में. मतलब कि मान लीजिए जैसे मैंने मेंशन किया, and this is something I struggle with my advanced students, how to push them to work with the passive voice. पुल बनते हैं, किताबें छपती हैं, फिल्में बनती हैं, आदि आदि. They don't pay attention to this until they are asked within the raft scenario, role, audience, format, topic. Nowadays, we started adding S, special language. आपको अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कम से कम 5 बार पैसिव वॉइस इस्तेमाल करनी है बस. सो उसी तरह इंटरवेंशन मतलब कि समझाना है, दिस इज हाउ यू फॉर्म इट, नाउ यूज इट. लेकिन कुछ और नहीं समझाना है, कुछ और नहीं वैसे ही करना है. जस्ट requirement, very specific requirement for students to use certain targeted language forms, which you as an instructor are finding
lacking or inconsistent. So this is one, for example, for higher level. जैसे मैंने कहा कि जो अपना possessive, reflexive possessive pronoun है, मैं मेरी माँ के साथ blah blah. ठीक है, तो अपना उसी तरह 5 बार अपना इस्तेमाल करना है. कॉन्टेक्स्ट क्या है? सीता की कहानी, मतलब सीता बैंक खोलने का की सीता की कहानी. सो उसी संदर्भ में कम से कम 5 बार ये इस्तेमाल करो, कम से कम 3 बार ये इस्तेमाल करो. तो उसी तरह इंटरवेंशन और रिक्वायरमेंट फॉर frequency of use is what helps, I guess, fine-tune the grammatical कमजोरियां जो बच्चों के पास है. ठीक है, ठीक है. धन्यवाद, धन्यवाद गैब्रिएला जी. आपका प्रोग्राम बहुत बहुत बढ़िया रहा और आपने बहुत अच्छा किया. एंड हम लोगों ने बहुत देरी में मैंने उतना आपसे ये नहीं कर पाए, कन्वर्स नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं. सो प्लीज एवरीबॉडी गिव हर ए बिग हैंड. धन्यवाद. धन्यवाद. गैब्रिएला जी, आपका धन्यवाद शब्दों में तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि सब जो ऑडियंस है वो मूक इसलिए है क्योंकि आपने जितना ज्ञान दिया है उसको अब्सॉर्ब करने में टाइम लगेगा. पर किस तरह आपकी प्रशंसा की जाए वो भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपने भाषा की सिखाने की कला तो बताई, पर उसके पीछे जो गूढ़ विज्ञान है वो आपने बहुत सुंदर, सफल, सशक्त तरीके से हमको समझाया, जो मैं जानती हूँ कि हर शिक्षण अपने दिल में, अपने जहन में उसको समा के, और मेरा ख्याल ढेरों क्वेश्चंस होंगे, पर आज के इस मौके पे तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारा सौभाग्य आप हमारे पास आई. एक बात जो मुझे समझ आई आपकी पूरी स्पीच से, और मैं माफी चाहूंगी कि मैंने अपने सब श्रोताओं उनको बताया ही नहीं कि टाइटल ही स्पीच का था 21st Century Skills for Teaching Hindi Language. एंड कितनी सफलता से आपने उस चीज को प्रस्तुत किया, हम सबके कॉन्सेप्ट के भी बाहर है. तो मुझे एक चीज ये बहुत अच्छी लगी आपकी बातों से कि भाषा, हिंदी भाषा स्पेसिफिकली हेरिटेज लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, अपने बच्चों को जब हम इस भाषा के प्रति प्रेम या उसकी यूटिलिटी समझाने लगे, तो ये भाषा वो नहीं है जो सिर्फ एक पुराना हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारे बुजुर्गों से बात करने के लिए यूज की जाए. यू हैव मेड इट क्लियर, आपने बिल्कुल उदाहरणों से, एग्जाम्पल से, रियल लाइफ सिचुएशन से क्लैरिफाई किया कि it should use digital technology, it should use the tools of 21st centuries, because this language will enable them to be more successful. ये जो क्लैरिटी आपने अपने माइंड मैपिंग से, कि टीचर लैंग्वेज में मैं यही कहूंगी कि इतने गूढ़ कॉन्सेप्ट इतने सरल तरीके से उन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स में और माइंड मैपिंग में देकर आपने हमें सिखाने का एक खजाना प्रेजेंट किया है. सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स, and we are indebted to you for sharing such insights. Thank you.